I am Mr. Mingkeng Borang, President, District Border Eastern Union, Lower Dibang Valley. Regarding 12 hours ban call on 20 October 2020, I want to highlight some points. On 21st August 2020, I have submitted a representation to the Honorable Home Minister, Goa Arunachal Pradesh, through Deputy Commissioner Rowing. After that submitted the representation, I got a letter from SDO Paglam. I will read it out. A meeting is being convened at the office of undersigned on 8/09/2020 regarding the Assam GOP encroachment and illegal construction within in the Paglam subdivision. In this regard, therefore, all the head Gambras and public leaders under Paglam subdivisions are directed to attend the said meeting to office of the undersigned at 10:30 hours on the aforesaid by without fail. So हम लोग ने वहाँ पे पहुँचा पगलाम सब डिवीज़न पे, बट कोई एसओडी नहीं आया हुआ था वहाँ पे. सो हम लोग मीडिया के साथ गया है, आपका मीटिंग हुआ हम लोग का, वहाँ का जो पीस कमेटी है वहाँ का गामबुरा से और वहाँ का लोकल पब्लिक से. After that, again, we have submitted a memorandum to Deputy Commissioner Rowing on 14 September 2020 with supporting requirements of public citizens and one point demand, which is immediate eviction of encroachers and illegal structure made under Lower Dibang Valley district. So again, after that memorandum, we have received again one letter from district administrative. I will read it out again. This is for information of following officers and President General Secretary DBSU, District Border Eastern Union, that there will be a meeting on 22/09/2020 at 11 hours in the office of Chamber of Deputy Commissioner Lower Dibang Valley District Rowing in the matter that the encroachment of land in Paglam area and other bordering area of Lower Dibang Valley by the people of Assam. So उस पे प्रेजेंट करने वाले थे, प्रेजेंट थे आपका DFO, नंबर 2 EACLM, नंबर 3 EAC Paglam, नंबर 4 SDO Parbuk, नंबर 5 CO Korunu, नंबर 6 EAC Judicial, and number 7 President General Secretary DBSU. Therefore, all are here be informed and request to attend the meeting positively and appointed date and time along with relevant. Tommy Polytechnic College, Pasar. Direct or APJEE. Admissions for 3 years Diploma Engineering in Civil, EEE and CSE. Scholarship benefits from government. Campus interview in selected departments by South Indian Management. And actually status, data, etc. So उसके बाद हम लोग ने डिस्कस हुआ वहाँ पे 22 सितंबर 2020 को. सो उसमें आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ने कहा गया कि वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव का स्टेटमेंट था कि that the matter is under subjudiction due to which the both parties from Assam and Arunachal cannot do any kinds of eviction activities in those area. So वो कैसे, इसमें मेरा सवाल था कि उससे if the case is subjudiced, then how can Assam encroach the land of our Lower Dibang Valley? और ये तो totally उसमें लिखा गया है कि इसमें as there is a verdict from Supreme Court to maintain status quo, why Assam encroach the Arunachal land repeatedly? Is this not a violation? So ये totally violation है. हम लोग अरुणाचल सिर्फ हम लोग मेंटेन कर रहा है, असम वाला तो मेंटेन नहीं कर रहा है. So इस पे तो लिखा गया है कि आपका 12 तारीख को जो मीटिंग हुआ है, हाई लेवल मीटिंग हुआ है सेक्रेटरीट ईटानगर में. So इस पे तो क्लियर कट बता दिया है, DC, SP एंड DFO को पावर दिया गया है, एविक्शन कर सकता है वो लोग. So why our administrative are not taking initiatives? So after that, again on 6 September, DC मैम ने मुझे बुलाया और रिक्वेस्ट किया है कि हाँ बैन कॉल को कॉल ऑफ करने के लिए.
आफ्टर डेट मैंने बोला इफ़ आप लोग काम कर रहा है तो चलो हमको एश्योरेंस दीजिए, इफ़ एश्योरेंस हमको देगा तो हम कॉल ऑफ करेगा। तो उसने मुझे एश्योरेंस में ये एक 6 तारीख को ही फिर हमको एक लेटर दिया आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ने, टू श्री मिंकेंग बोरांग प्रेसिडेंट, श्री जिकी राटान जनरल सेक्रेटरी DBSU रोइंग, your application dated 14/09/2020 in reference to your application dated 14/09/2020 it is to inform you that a complaint report received from sub divisional officer Paglam by letter number PGL/GA/02/2019 20/223.01 dated 8 September 2020 and the other relevant documents have been forwarded to GOV by letter number LDR/JUD/2020/35850.852 date 28 September 2020. In this regard, Office of the District Border Affairs have conveyed that the government of Arunachal Pradesh shall be taking the issues with the GOV of Assam at the earliest. So इसमें हम लोग का मांग जो वही है कि हम लोग का जो हम लोग बॉर्डर डिस्प्यूट एरिया को छोड़ के जो हम लोग का ज़मीन में आ गया, जो हम लोग का कंपाउंड तक आ गया, अगर किसी का कंपाउंड तक आएगा तो कोई भी हो आप उससे तो भगाना पड़ेगा। और ये सवाल मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव से भी कहा है। और एक एग्जांपल के साथ, जब आपका कंपाउंड को कोई तोड़ के घुसेगा आप तो उसको भगाना पड़ेगा। ये मेटर बाउंड्री इशू का नहीं है, बाउंड्री को पार करके है, क्योंकि वो मेरा घर तक पहुंच गया तब तो हम तो भगाना पड़ेगा। और हम ये पूछना चाहता है स्टेट गवर्नमेंट को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव को, क्या ये लोअर दिबांग वैली का ज़मीन अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट का नहीं है? और ये क्या ज़मीन हम लोग का लोअर दिबांग वैली पब्लिक का नहीं है? ये पूछना चाहता है। और कल को क्या भरोसा, कल के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, बहुत ही बड़ा थ्रेट है, सिर्फ लोअर दिबांग वैली के लिए नहीं, एंटायर अरुणाचल के लिए है। इसको जैसे भी हो एविक्शन कराना ही है, क्योंकि अगर इफ़ नहीं करवाएगा कल को ये एक प्रूफ बन के आसाम वाला सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बना के वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करेगा, तब तो वो लोग टोटली वो लोग का हो जाएगा। सो अभी जितना जल्दी हो सकता है ये एविक्शन को करना है। और मैंने नहीं बोल रहा है कि मैं आसाम वालों का एविक्शन करो, जो हम लोग का 80s का बात को छोड़ के अब जो 91 में हम लोग का अंडरस्टैंडिंग में, जो 91 में हम लोग का बोथ साइड का जो हम लोग काउंटर पार्ट वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव्स और हम लोग का यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव्स जो एग्रीमेंट किया उसको तो स्टेटस को मेंटेन करना है, वही उसको क्रॉस करके आपका ईस्ट सियांग पहुँच गया। सो हम लोग नहीं बोल रहे कि वहाँ से सबको एविक्शन करा। हम लोग का पागलाम से लेके शांतिपुर से लेके सोनपुरा, सो यहाँ में जितना भी हम लोग का टेरिटरी, हम लोग का जुरिस्डिक्शन में जो इलीगल स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसको हम लोग एविक्शन का डिमांड कर रहा है। इसको जो भी हो एविक्शन करवाना है। और हम ये भी रिक्वेस्ट करता है जितना भी अरुणाचल का पब्लिक है, NGO से और ये चैनल का व्यूअर्स को मैं अपील करता हूँ, हम लोग को जैसे भी हो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। अगर हमारा ज़मीन ही नहीं रहेगा तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा? और ये तो टोटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव का वीकनेस है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी परफॉर्मेंस को लेके रिगार्डिंग बॉर्डर एरिया बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव भी वीक है। और एज ए प्रेशर ग्रुप इसलिए हम लोग डिमांड करता है कि जितना भी इलीगल स्ट्रक्चर बनाया है लोअर दिबांग वैली के अंदर, इसको जल्द से जल्द एविक्शन किया जाए।